microscope, and this is an example of compound microscope. Now why it is called simple microscope? Because it has only single lens. But if we talk about compound microscope, it has two lenses. One is the eyepiece and the other is the objective lens. दो लेंस होते हैं इसके अंदर. One is the eyepiece जो ऊपर से हम देख रहे हैं, इसको हम eyepiece भी कहते हैं और क्या कहते हैं? It is also known as ocular lens. What it is called? Ocular lens. So eyepiece or ocular lens. Whenever you find any word related to eyes, it will be ophtha, opt or ocular or e से शुरू होगा eye, something like that only. Okay, so this is an eyepiece or ocular lens. Now another lens is here. This is called objective lens. Why it is called objective lens? Because we focus on that object from this lens only. That is why it is called objective lens. Clear? Now let us talk about different part of this microscope. Now this microscope consists of this horseshoe shape structure. This is the base. This is the base of the microscope. This curved line, slant line or curved line is actually the arm of the microscope. इससे हम इसको hold करते हैं. We actually hold the microscope through this arm. Fine? Any doubt? This is the eyepiece. I already told you. Okay, whenever you hold a microscope, always hold like this. Don't hold like this. Always hold like this. You have to give some support to it. Okay? Because ये बहुत sensitive instrument है. कुछ भी हो सकता है इसमें. So this is the important thing. Now next thing is that it is a mirror. It is a mirror which actually help you to focus the light in the object. जो आपको focus करने में मदद करेगा light को. Since हम light को यहाँ पे use करते हैं, since we are using light in this microscope to see the object, thus it is known as light microscope. Fine? Everyone got my point? Why it is called light microscope? Why it is called compound microscope? Because it has two lenses. That is why it is known as compound microscope. Fine. Now let's talk about these knobs. We can see here two knobs. This knob is known as कोर्स एडजस्टमेंट नॉब. व्हाट इट इज कॉल्ड? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब. मुख থেকে বলতে হবে, মুখ বন্ধ করে রাখলে কেউ বন্ধ করতে পারবে না, মুখ খুলতে হবে, ঠিক আছে? This knob is known as coarse adjustment knob, but this knob is known as fine adjustment knob. दो knob है, इसे कहते हैं हम coarse adjustment knob, इसे कहते हैं हम fine adjustment knob. ये coarse adjustment knob किस चीज में हेल्प करता है? It helps to move the tube. That lens tube जो है ना, इसको मूव करने में it helps to move the tube upwards and downwards. So what will happen if we move it upwards and downwards? So it will help us to focus on the object. हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर अच्छे से इमेज को लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि इस लेंस का फोकल लेंथ जो है वो मैच हो जाए. So it will help us to measure, it will help us to focus on that object. Fine. So what is the use of this fine adjustment? The use of this fine adjustment is to do the tuning of the image. Suppose if I am looking at an object and my focal length is different, my focal length might be different from your focal length. My resolution of eyes might be different from your resolution of eyes. So in order to do tuning, we actually use this fine adjustment knob. This should be used very slowly. अगर आप इसको फास्ट करेंगे तो इसका सेंसिटिविटी खराब हो जाएगा. So you have to do it very slowly. Fine. After that, coming to the stage. This is called the stage in which you will put the slide and you will see the object. Fine. Now next thing is that this is the pin. You know that. What is the function of this pin? This fix to fix or to hold the slide. As we are looking it, suppose we got a focus, we got the specimen which is seen, which actually we want to see, so we will focus it through this pin only. We will hold it through this pin only. Fine. After that, there are three objective lens you can see here. Three objective lens. Three objective lens is having three different magnification. One is having 10x, another is having 45x, and sometimes it is also having 100x magnification. So one more thing, this is the magnification of objective lens. This is the magnification of objective lens. But if we talk about the eyepiece or ocular lens, this is having magnification of 10x or 15x. 10x or 15x. Fine. So this is the magnification of eyepiece. Eyepiece or ocular lens. Ocular lens. These lenses are very sensitive. Fine. Now sometimes they ask you, suppose you are looking at a specimen. Okay, you are finding a focus of a specimen. Now what you want to do? You want to actually understand what is the magnification at which I am looking at. So whenever you are using a 10x eyepiece and 10x objective lens, so basically you are magnifying the object into 100 times. Fine. How?
So magnification will be how much, जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय जो भी आईपीस का होगा, हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मैग्निफिकेशन पता चलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे अभी जो मैंने सेट कर रखा है दिस इज 45x, ऑब्जेक्टिव लेंस इज 45x एंड दिस लेंस इज 15x, सो नेवर ऐड दिस टू। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, किसी ने कहा था कि सर 45 और 15 को ऐड कर दो, कितना आएगा आंसर? एडिशन करना नहीं होता, 60 45 प्लस 15 कितना होता है? 60 होता है ना, तो सर 60x में देख रहे हैं, नहीं गलत है, 45 into 15, सो जो आंसर आएगा उतने x में हम उसे देख रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, अंडरस्टूड? सो यहां पे अगर हम 10x यूज करते हैं एंड 45 वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है, सो 10 into 45 दैट मींस हम 450 टाइम्स उसको जूम कर रहे हैं, 450 times we are magnifying the image. Got my point? Now what is magnification? You all know magnification means to zoom something, to magnify something so that we can see the clear picture of it. Fine. Now next important term, very important term, and this might be asked in examination also. कोई पूछे ना पूछे, मैं भी पूछूंगा। ये याद रखना, रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि इस लेंस का, ये इस कैमरे का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। हम जब लड़कियां जब सेल्फी कैमरा खरीदती है बहुत ध्यान से, वो क्या देखती है कि इसका कैमरा अच्छा है। क्यों कैमरा अच्छा है? क्योंकि उसमें रिजोल्यूशन बहुत अच्छा आता है। सो व्हाट इज द रिजोल्यूशन? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजोल्यूशन, व्हाट इज रिजोल्यूशन? Resolution of a microscope is defined as it is the capability of that microscope that whether it can differentiate between two points or not. अगर सपोज दो पॉइंट है बहुत क्लोज, जैसे ये दो पॉइंट है, ये और ये, इसको तो मैं नेकेड आई से डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं, है कि नहीं? इसको हम नेकेड आई से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर दो पॉइंट इतने क्लोज हो जिसे हम नेकेड आई से डिफरेंशिएट ना कर सके, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। These microscope provide us the great resolution. Resolution provide करते हैं, इसका मतलब इसका ये क्षमता है, इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये दो पॉइंट जो कि बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ, उसको हमें अलग-अलग दिखा सकता है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। So it has a distinct ability to show two points which are very close to each other in different area, मतलब different distance में उसको दिखा सकता है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? This is the resolution of a microscope. अब मुझे बताओ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, बिकॉज वो बहुत छोटे से छोटे माइन्यूट चीजों को हमें देखने में मदद करता है, लाइक वायरस, लाइक HIV वायरस हो, चाहे आपका कोरोना वायरस हो, जो भी वायरस हो, आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Now someone might ask you, what is the use of electron microscope, or why we use the term electron microscope? Because we use electron beam as a source to see the object, to see the image. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइट यूज कर रहे हैं, that is why it is known as light microscope. पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं? बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, that is why it is known as electron microscope. Clear? Electron microscope are again two types, this transmission electron microscope and scanning electron microscope. You don't have to go through that. Okay, just दो चीज है, एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, एक है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है इस बुक में, मैं बता देता हूँ मैं सब। ये फार्मूला लिखना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, आई एम राइटिंग इन द बोर्ड, जस्ट सी इट। रिजॉल्विंग पावर R इज इक्वल टू, resolving power R is equal to lambda by 2 times of Na. Lambda by 2 times of Na. What is lambda? Lambda? Focal length. Lambda? What is lambda? Who are saying that it is wavelength? Raise your hands. कौन बोल रहे हैं कि ये wavelength है? प्लीज अपना हाथ उठाइए, मुझे देखना है, वो महान लोगों का चेहरा देखना है। लैम्डा क्या होता है? जल्दी बोलो, व्हाट इज लैम्डा? क्वेश्चन मत बोल, व्हाट इज लैम्डा? अच्छा, कौन बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है? हाथ लो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलना है तुम लोगों को। क्या होता है लैम्डा? व्हाट इज, बोलो मी, व्हाट इज लैम्डा? यू डोंट नो व्हाट इज लैम्डा? योर गुड नेम? Ocean.
Okay, what is lambda? Wavelength. Wavelength. What is lambda? Wavelength. 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 When I'm asking to raise your hand, so where is your hand? कौन बोल रहा है wavelength? हाथ दो, दिखाओ, चल दिखाओ अपना, जरा लंबा उठाओ, अरे कॉन्फिडेंस के साथ उठाओ। और बताओ कि लैम्डा कौन बोल रहा है फोकस होता है, हाथ उठाओ, फोकस कौन बोल रहा है, कांस्टेंट कौन बोल रहा है, और अरे यार लैम्डा मतलब तो वेवलेंथ ही होता है, इतना कंफ्यूज क्यों है? व्हाई यू आर सो कंफ्यूज? एग्जामिनर यही करेगा आपके साथ। सर तुम तो ट्राई करते हो। हाँ मैं वही तो करके बता रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है। नहीं सर, क्या होता है कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि वो मतलब ये पता है कैसे हुआ, मैं समझाता हूँ इसका क्या हुआ। यहाँ पे आपको पता है क्या हुआ, एक बार ना एम्स में क्वेश्चन पूछा था, सुनो ध्यान से, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा था, द कलर ऑफ ब्लड इज, पहला ऑप्शन रेड, दूसरा ऑप्शन क्रिम्सन रेड, तीसरा ऑप्शन चेरी रेड, चौथा ऑप्शन पेल रेड। 90% बच्चों ने पेल रेड, क्रिम्सन रेड, चेरी रेड मार के आया था। आंसर क्या था? रेड। बच्चों को क्या समझ में आया? एम्स तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, हो ही नहीं सकता, कुछ तो इसमें बात है, हमने बचपन में शायद गलत पढ़ा है, कुछ तो इसमें बात है। नहीं भाई चेरी रेड होगा, नहीं क्रिम्सन रेड होगा। आंसर क्या था? रेड। तो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा मत सोचो कि जो पूछ रहा है वो खतरनाक आदमी को इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है, ये मत करो, क्योंकि एक्सटर्नल जो आएगा ना वो आपको वहीं रुलाएगा। ही विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चन। अच्छा व्हाट इज लैम्डा, तो आपने बोला वेवलेंथ, पता था आप लोगों को वेवलेंथ, लेकिन किसी के भी चेहरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये मत करो, कॉन्फिडेंस के साथ गलत भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ताकि सामने वाला घबरा जाएगी नहीं, जो बोल रहा है शायद उसको पता है कुछ। उसके बाद मुझे कोई कॉन्फिडेंस का जवाब देता ना तो मैं भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया इसके अंदर। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। एक्सटर्नल आपको मैनिपुलेट करेगा आपके साथ, मैनिपुलेशन नहीं करना है। 30 में 30 चाहिए कि नहीं सबको 12th में? सबको चाहिए 30 में 30, तो यही काम है, एक्सटर्नल आएगा और आपको लूट के चले जाएगा अदरवाइज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। फाइन। सो लैम्डा इज वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? आप जोर से बोलो। मीटर। Unit. What is the unit of wavelength? Angstrom. Nanometer, angstrom. Meter. Someone is saying meter. Angstrom. Armstrong या Armstrong? Armstrong. Spelling? It's A-N-G. It's not arm. It's angstrom. Okay. So the unit of wavelength is, it can be centimeter, it can be meter, it can be Armstrong, it can be nm. Okay, so it is the unit of length basically. Fine. Now let's talk about the Na. Na means होता है numerical aperture. अब numerical aperture क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, अपने बुक में कहा है कि R is equal to resolving power is equal to lambda by 2Na, in which Na should be ignored. So R is equal to lambda by 2. Remember this formula, very important. So resolving power of microscope is equal to lambda upon 2. Now tell me one thing. The light which we can see is called visible light. Fine. So what is the range of that visible light? पता है किसी को कितने आर्मस्ट्रॉन्ग से कितना आर्मस्ट्रॉन्ग होता है? 400 to 700. कितना? 380 to 750. यूनिट भी बताओ। 300 to 750 एंगस्ट्रॉम तो गलत। 4000 से 7000। वो तो मैंने बोला। 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग is the visible range of कौन सा था वेवलेंथ? ना नैनोमीटर मैं सही बात है, लेकिन remember it should be between, visible range is between 4000 to 7000 Armstrong. Fine. And what is the band of color? Pure. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. As we go from violet to red, lambda increases. याद रखना, lambda increases. Lambda increase होगा तो mu डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यू और लैम्डा का ऑपोजिट रिलेशन होता है। एनर्जी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डिक्रीज होगा क्यों? क्योंकि न्यू तो कम हो रहा है ना, E = h न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, पढ़ा ना प्लैंक्स कांस्टेंट वाला। हां, सो E = h, याद रखना ये बात। फाइन। और क्या डिस्कस करना है, और कुछ है क्या? हां एक और बात, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10x, 45x and 100x। आप जब 100x यूज करेंगे, whenever we use the 100x, so we have to use oil immersion या immersion oil कहते हैं उसे।
इमर्शन ऑयल का फंक्शन क्या होता है? इमर्शन ऑयल क्या करेगा? यहाँ पे हमें ना इमर्शन ऑयल देना पड़ता है। सपोज कि हमारे पास एक स्लाइड है, सपोज दिस इज स्लाइड and specimen is here. Specimen suppose is here. Fine. So what we have to do? We have to put a drop of immersion oil here. We have to put it here and then हमें क्या करना होगा? ये ऑब्जेक्टिव लेंस को और इस स्लाइड को बिल्कुल टच करवाना होगा। कोई गैप नहीं होना चाहिए। Try to understand. मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, हंसना मत। मान लो कि ये अपना ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये अपना स्लाइड है, तो अपने को ना इसको बिल्कुल नीचे लेके आना है और यहाँ पे एक ऐसा लैमिना तैयार करना है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस भी होगा और हमारा जो स्पेसिमेन है और जो ऑयल है वो भी होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिप्लेस द मीडियम। वी हैव टू रिप्लेस द मीडियम फ्रॉम एयर टू ऑयल। हमें उसको ऑयल में ऐसे टच करवाना है ताकि मीडियम बदल जाए। सर मीडियम बदलने से क्या फायदा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग द मीडियम? एज द मीडियम चेंजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस, and as the refractive index changes, that means more amount of light will enter through the object. So हमें अच्छे से आईपीस में और बेटर तरीके से हमें ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन के साथ, बेटर रिजोल्यूशन के साथ अपने को दिखेगा। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? एकदम क्लियर होना। अच्छा एक और बात है, अगर मान लो किसी एक माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन है 0.2 nm, कितना? 0.2 nm, और दूसरा एक और माइक्रोस्कोप है जिसकी रिजोल्यूशन है 0.4 nm। आप कौन सा माइक्रोस्कोप प्रेफर करोगे? कौन सा बेटर है, 0.2 nm वाला या 0.4 nm वाला? बताओ। 0.4 जो 0.4 को हाथ उठाओ। धीरे-धीरे हाथ क्यों उठ रहे? ओके हाथ नीचे करो। जो 0.2 बोल रहा हाथ उठाओ। ये कॉन्फिडेंस है अच्छे। ये तो कॉन्फिडेंस नहीं। हाथ ना बोल 0.2 ना 0.4? 0.2 कौन माना है? 0.2 कॉन्फिडेंस। ओके डाउन हैंड्स डाउन। हम प्रेफर करेंगे 0.2 nm। क्यों? इसका रीजन क्या है? कोई बात नहीं, जिसकी गलती है सुन लो। क्या इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि 0.2 nm वाला यूज करने से फायदा ये होगा कि सर अगर 0.2 nm की भी डिस्टेंस है ना तो भी वो उसको दूर दिखा देगा, और 0.4 nm का है इसका मतलब it will only show us 0.4 nm वाला, उसके नीचे अगर रहेगा डिस्टेंस तो नहीं दिखा पाएगा वो। इसलिए जितना कम 0.2 nm लिखा हुआ है यानी कि कम है रिजोल्यूशन, हम और बेटर तरीके से उसको देख सकते हैं। आया बात समझ में सबको? नहीं आया? नहीं समझ में आया? मेरा कहने का मतलब मान लो दो पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस है 0.2 nm, ठीक है? एक पॉइंट है, अब मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है 0.2 nm वाला, 0.4 nm वाला। अगर आप 0.4 nm वाला माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो आप इसको देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि इस माइक्रोस्कोप का कैपेसिटी 0.4 nm तक का है। वो उससे ज्यादा दूरी का दिखा सकता है लेकिन उससे कम दूरी का अरे यही तो फर्क है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इस माइक्रोस्कोप में। ये माइक्रोस्कोप 100x यानी कि 1000x तक लेके जाएगा मैक्सिमम, इससे रिजोल्यूशन उसका बहुत ज्यादा है, लाख टाइम्स मैग्निफिकेशन हो जाता है उसमें। समझने की कोशिश करो। Got my point? So this is the difference between compound microscope and an electron microscope. Got my point? Clear?